All right, and welcome to the very happy pavilion. मैं हूं फखरे आलम और ये है Sports and you've just seen a remarkable victory for Pakistan at the Ring of Fire in Dubai International Cricket Stadium, and it was Asif Ali, four sixes in that 19th over that sealed the deal for Pakistan, winning with 1 over to go. What a relief after that. Wow. After that Rashid Khan over, where I'm still trying to figure out what Babar Azam was thinking on the last delivery, but we'll talk about that. Let's take a look at the scorecard. This is how it went down. It was Afghanistan that won the toss, elected to bat. It looked like they were in a lot of trouble, and they were indeed. But then came a really good innings towards the end by Gulbadin and Nabi. Their experience paying off, both of them contributing 35 each, and that put up 147 for 6. For Pakistan, Imad Wasim picked up 2 wickets, but it was Shadab Khan that had the best economy rate there at 5.50, lowest given away runs. Shaheen and everybody coming to the party pretty much, but you know what, that performance there all round really well by Pakistan, and in return it was Captain Dependable Babar Azam opening and setting up, playing deep, 51 runs, though again we'll talk about that shot that he played. It was really, and of course Fakhar Zaman, that 30, really well played. And then it was the hero of the moment, the hero of the day, the nightmare for the Afghanistan team. It was Asif Ali with those 4 blistering sixes in that 19th over, which closed the game, which at one point looked like it's going to be a tough one and all the way to the end. Rashid Khan there, 2 for 26, no surprises there. Pick of the bowlers, Mujib also, but fantastic bowling by him. Only 14 runs in his 4 overs, picking up 1 wicket. Naveen, fantastic as well, 1 for 22, and Nabi there, 1 for 36. So that's how it went down. Pakistan win by 5 wickets, and they keep marching on undefeated in this pool. Congratulations, Pakistan. With me in the pavilion, 4 very happy legends, superstars: Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah-ul Haq, and Wahab Riaz. Congratulations, gentlemen. What a game of cricket, Wasim. Congratulations all around. Yes. मिठाइयों के डब्बे कहाँ पे हैं? आज तो पहले ही बहुत कुछ खा लिया। आज बहुत ज्यादा मुंह मीठा कर लिया हमने ओवर द पैस। अपनी बात बताने की नहीं है, हम पाकिस्तान पूरे की बात कर रहे हैं। The whole country is celebrating, and they should. It's incredible run so far by Pakistan team in this T20 World Cup. Correct. 3 out of 3, 100% so far. और बड़े लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है कि अगर ये मैच हम सारे जीतते हैं कहीं सेमीफाइनल जाके हार ना जाएं। That's wrong. Yeah. You know, once you are West Australia ने 1-2 दफा वर्ल्ड कप 50 ओवर का बगैर हारे ही सारे वो वर्ल्ड कप जीत गए थे. So that's a negative thinking. But the way they played, the way they started off, we'll start off with Afghanistan. We'll start talking about we'll get to that just in a moment. Just wanted to get an overall that it was a great game of cricket, and yes, it's celebratory. Let's take a look at the points table quickly before we get into the deep end of the discussion. ये है points table आप लोगों की स्क्रीन पे. ये Group 2 है, पाकिस्तान का group है. Look at that. Such great pride to be looking that Pakistan is right on top. They've played 3, won 3 with 6 points, sitting up there. Afghanistan, well, they really played a good game of cricket. They made a comeback in their batting. We'll talk about that. They're sitting there on the second position. Namibia, New Zealand and India. Scotland, well, they played 2, won none. India played 1, lost 1. New Zealand played 1, lost 1. Namibia played 1 and won 1. So they're sitting there with 2 points. This is how the table is. And let's get to the business end of talking about this game of cricket. Let's start with the Afghanistan batting, Wasim. I think Pakistan team came with a plan that they came out. उनको पता था शुरू में ये अटैक करेंगे Zazai and MS Mohammad Shahzad. But I think Imad Wasim bowled really well. He got important wicket of Zazai early on. और जिस तरीके से I suppose अफगानिस्तान ने come back किया, they were 6 for 76 and they were 5 for 64 in 5.1 overs. And I think उसके बाद उन्होंने ऐसी पिच पे जो हमें पता था कि 140 plus थोड़ा टारगेट मुश्किल हो सकता है because of their spinners in the middle. But I think over and all Pakistan team looked really good. Bowling में one worry है सबकी, वो है हसन अली की. Obviously जब ये सब बात कर लेंगे then we can discuss that in length. He was a match winner, he still is a match winner, but for some odd reason Vicky is struggling with his front foot. And today he looked a bit off.
Yeah. He didn't look like Hassan Ali, usually full of bubble, diving around. उसके चेहरे से, I know it's a pressure game, but चेहरे से पता लग रहा था. और ये no ball की problem अभी से नहीं उसको हो रही, जब से इसने come back किया है. I mean, Qaiद-e-Azam Trophy में he bowled 47 no balls. Wow. So that shows कि it's kind of got into this bad habit as a bowler. Once you get into that habit कि पाँव आपका आगे आना शुरू हो जाए, बड़ा मुश्किल से वापस आता है. Yeah, one shouldn't go close to that line actually. Especially आपने उसको हारिस को देखा ना? Yeah. कितना पीछे से बॉल कर रहा, तो why don't go near that line. होता ये है कि sometime जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते, अच्छा जब कर रहे हो तो उस वक्त अगर कोई नो बॉल करे तो आई फील कि जी that's a crime. Yeah. Very simple. हाँ, जब आप बुरा कर रहे होते तो आई कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन कि नहीं यार, he's pushing himself, और sometime उस पुश में आप पैर आगे निकल जाता है. और हसन is struggling, no doubt about that, but I will not lose hope on him. Yeah. वो इसलिए कि he's a match winner. Sure. No doubt about that. He's a big match winner. Or he will come back, he will bounce back. What should he do He to should control this his front foot? Look, what happens is when he's not in rhythm, no? When you're in rhythm, you don't bowl no balls. You don't go near that line. I think to get that rhythm, he's got to start from behind that line. So even अगर वो push भी करता है अपने पैर को तो line के ऊपर जाए, उससे आगे ना जाए. तो वो I guess nets में ही हो सकता है, या अब बीच में दिन बहुत कम होते हैं, but you need to have specific practice training for maybe couple of overs, not for too long. Maybe 2-3 over दिन के जरूर करने चाहिए जो try to get that rhythm going from behind the line. I'd like to ask this question. Wasim pointed out he bowled 47 no balls in the Qaiਦ-e-Azam Trophy, and then now he's having that problem. And 4 no balls so far in this. This right, and then also from the very first match, you know, remember when we saw that amazing bowling card against India, it looked like he was the expensive one there at that time. Seems like he didn't have rhythm at that time. Yeah. Then the last game against New Zealand, again we thought, you know, you said the same thing. He'll bounce back. He'll bounce back from the first game. We went into the second game. He didn't get that rhythm. Today again we are in the third game. Again he was the more expensive bowler out of the lot. Gave away 21 runs in one over. Could it be that he's carrying that bad form? Because players go in and out of form. It's a natural phenomena. वो Qaid-e-Azam Trophy से चलती आ रही है और अभी तक वो form का issue खत्म नहीं हुआ. Sometime ऐसा होता है. Sometime you stop caring at times. You know, you think I'm being very successful. और success मिली है उसको. पिछले तकरीबन 6 महीने से he's been our best bowler. Test match level, one day level, even T20 level. So he's been a match winner. Yes, he's going through the patch. Where he's struggling. I think he's got to think. He's got to sit back and think hard and put yourself. अपने आप को उस मुश्किल में डालो. Just don't run away from it. कि नहीं ठीक हो जाएगा. होता ही है sometimes कि you just sit back and say, oh यार मैं तो because I've done so well in the last 6 months, it will come good. It will come good, but only when you will train and practice for something. You do something for certain things, and you don't do certain things for certain things. वहाब, इस क्वेश्चन को मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप जब आपका नो बॉल होता है या आपके होते हैं फॉर इंस्टेंस एक आधे मैच में, तो आप कैसे रिकवर करते हो या कम बैक करते हो या क्या करते हो कि आपका फ्रंट फुट, बिकॉज आजकल के क्रिकेट में नो बॉल इज अ फ्री हिट. इट्स नॉट लाइक आवर टाइम्स. वसीम भाई, I think he's a little bit under pressure because of his performance. Okay. He's somebody who works really hard and he believes in that, and he wants to do good in every game, which is not possible because as a player you might have a good form or a bad patch. I think he's trying too much. He should be what he is best at. I think he's not doing what he is best at. So because he is trying to do something exceptional, that's why he's carrying that front foot ahead and trying to bowl fast. And you know, he want to make an impact probably. So that could be another reason. I think ऐसी situations में होता ये है कि you know you are in a good form, but what happens is कि when you think of trying something very different or something very out of the box, then these things occurs, and I think that's why he's struggling. Talking about that struggle, Wahab, let me ask you this. आपने आज देखा शाहीन का पहला over. It looked like he was trying too hard. He was a little too charged up. He was worked up. And not getting the same kind of swing that we are used to seeing Shaheen bowl in these conditions. I will not say only Shaheen, I will say the whole Pakistan bowling unit, especially the fast bowlers. You know, we have talked about it. In the last few games,
See, this is okay that he wants to bring that ball into the right-hander and take that ball away from the left-hander. So that's fine for the first over. But today, if you see all the Pakistani pace bowlers, I'll talk about all the Pakistani pace bowlers. We have talked about it that we might not be getting wickets up front every time as a bowler, right? So you know, for that you have to keep your calm. You know, we have played last 2 games. We have done exceptionally well in the power play, taking wickets even in this power play. But where we went wrong was that even though we were getting wickets, but still the other team was able to score over 40 runs. Yeah. That means we were over trying. So you know, if we have kept things a bit more simple and easier, because I think कि उनके बैट्समैनों ने हमें चार्ज नहीं किया. We have bowled some bad balls जिसकी वजह से they were able to score runs, and they capitalized doing that. अगर आप ये मैप देखें तो by the way ये वेरिएशन है शाहीन शाह अफरीदी के एवरेज स्विंग जो है 1.7 डिग्री से लेके वो, और ये उनकी बॉलिंग लेंथ है जो आप देख रहे हैं. Clearly he likes to pitch it up because he wants the ball to move and swing and, you know, kind of challenge the batsman right in the beginning. But Wahab, you bring in a good point. जी वकार आप कुछ कह रहे थे. पिछले जो 2 मैचों में देखा ना, वो ऑफ कोर्स स्विंग देखी शाहीन की, और स्विंग अर्ली ऑन विकेट मिला. एक पाकिस्तान के बॉलर्स की थोड़ी सी खराब हैबिट है, वो ये है कि दे वांट टू जस्ट ब्लास्ट थिंग्स आउट एंड ट्राई टू टेक विकेट्स यू नो एवरी बॉल. और वो 2 मैचों में नहीं नजर आया था. पिछले 2 मैचों में बहुत कामली बॉलिंग कर रहे थे. हारिस भी बड़ी कामली बॉलिंग कर रहा था. Hassan, yes, he went for runs, but I could see what he was trying to do. Shaheen, I knew what he was trying to do. Aaj, I thought that they were over trying. They thought everyone was thinking कि मैं ही wickets ले लूँ, मैं ही ले जाऊँ. So I want to ask you this question. It's very interesting कि आपने ये conversation छेड़ी है इस तरह. लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा प्रेशर मैच वर्ल्ड कप के लिए कौन सा होता है? इंडिया वाला मैच होता है. Apparently not anymore. Well, not anymore, thank God. But you know, it was कि भाई हम जिंक्स थे और कोई मैच नहीं जीते हुए थे. उस मैच में जब आए, और वो पहला वर्ल्ड कप का पहला मैच, इट्स लाइक you're out of the gates right at the beginning. उस दिन हमने बड़ी नर्व्स कंट्रोल में रखी हुई थी. आपने नोट किया, बड़े डिसिप्लिन थे. सेम इज द केस इन द न्यूजीलैंड गेम. बट टुडे शाहीन शाह अफरीदी स्पेसिफिकली देखिए, उन्होंने एक जो जबरदस्ती उन्होंने एक जो रिव्यू मांगा, जो क्लियरली हमने देखा फुल टॉस था, नहीं था स्टंप्स के अंदर. फुल टॉस था और तीसरे मोहल्ले जाके लग रहा था. तीसरे मोहल्ले जाके लग रहा था. नेड़े तेड़े हो गए विकेट ने. आई कैन अंडरस्टैंड. शायद अफरीदी वाज इन द ग्राउंड. द पीपल ऑन ट्विटर सेइंग कि सुसर का प्रेशर था. एग्जैक्टली क्या हो रहा था? सक्सेस मेक्स यू डू फनी थिंग्स. जब आपको बहुत सक्सेस मिलती है, हसन के साथ भी ऐसा हुआ है, तो वहां पे काम रहना चाहिए, वहां पे कैलकुलेटिव रहना चाहिए. आई थॉट के गुड थिंग जो मुझे नजर आई ना, दैट वाज पेस. The pace is there. हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में जो पेसी बॉलर्स हैं, they are successful. और हमारे बॉलर्स ने जिस पेस से बॉल किए, that is good to see. Having said all of that, and though हम अभी भी शायद हम लोग तनकीद नहीं कर रहे, हम रिव्यू कर रहे हैं कि गेम में हुआ क्या है. बहुत सारे लोग अगर उसको मिस इंटरप्रेट करें कि ये हरगिज़ तनकीद नहीं हो रही, हम रिव्यू कर रहे हैं. शायद फखर हम थोड़ा सा तनकीद की तरफ जल्दी चले गए हैं, क्योंकि हम मैच जीते हैं, so we should have praised them beforehand. प्रेज की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उन चीजों को एड्रेस करना चाह रहे हैं, अभी से बात करना चाह रहे हैं कि अगर ये आगे जाके प्रॉब्लम ना बन जाए, क्योंकि क्लोज कॉल जो भी है, मैच हमने 19वें ओवर में जीता है. बीच में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब पेंडुलम स्विंग हुआ है. हैविंग सेड दैट, मैं जो कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि आज हमने फिर भी ऑन टॉप हमने उनको हर्ट किया. 4 विकेटें निकाली आज 6 ओवरों में जो पावर प्ले के अंदर. बट देन क्रेडिट टू द अफगानिस्तान बैट्समैन फॉर मेकिंग दैट स्पेक्टेकुलर कमबैक that they did. This is game of T20 cricket. ऐसा होगा, ऐसा ये ना समझें कि आपको वॉकओवर्स मिल जाएंगे, बड़े आसानी से मैच जीत जाएंगे. दिस इज वर्ल्ड कप स्टेज. आगे आप हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें. You know, there will be bigger teams coming and they will do this to you. They will put you under pressure. आपने अगले दिन देखा ऑस्ट्रेलिया ने अर्ली ऑन श्रीलंका को ऐसे लग रहा था कि they had no issues. They went from the word go from the very first ball. So teams are settling in now. वो जो early nerves थे साउथ अफ्रीका से भी निकल गए, श्रीलंका से भी निकल गए, and I hope इंडिया से वो ना निकलें. क्योंकि उनका जो अगला मैच है, 6 दिन हो गए अगला दूसरा मैच नहीं खेले. So I hope that doesn't help them. एक और चीज दोस्तों, मैं क्विकली ये भी बताता चलूं, हम हसन अली की बात तो करें क्योंकि पिछले 2 मैचेस के भी उनकी प्रॉब्लम थी वाज़े तौर पे, लेकिन याद रहे जो सुपरस्टार बॉलर रहे हैं अभी तक पिछले 2 मैचेस में, हारिस रऊफ, उनको भी आज वो है. सो बेसिकली हारिस का और हसन अली ने दोनों ने आज 1-1 विकेट लिए. हारिस रऊफ ने 37 रन देकर 1 विकेट लिए 4 ओवर्स में, और हसन अली ने 38 रन देकर 1 विकेट ली है 4 ओवरों में. So there's not much difference there if you come to think of it, you know. देखिए बात वही है
कि हम लोग यही बात करें कि हम लोग ओवर ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को, हम लोग एक प्लान पे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। आज भी नज़र आया कि स्लोअर वंस का जो वेरिएशंस थी वो बहुत अच्छी यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन आज बॉल उतना ज़्यादा ग्रिप नहीं किया फास्ट बॉलर्स का। प्लस आई थिंक अब टीमें भी थोड़ा सा प्लान करके आई हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस तरीके से आप ये देखें स्लोअर वंस किए हैं, दे हैड अ प्लान, राइट। उन्होंने कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं लिए, उनकी एक तो विकेट्स नीचे गिरी हुई थी तो उन्होंने ज़्यादा चांसेस नहीं लिए। प्लस दे नो के पाकिस्तान बॉलर्स जो हैं वो एंड में आके ये चीज़ कर रहे हैं कि व्हेन दे आर कमिंग इनटू द डेप्थ, स्पेशली द लास्ट 6-7 ओवर्स, दे आर यूजिंग देयर स्लोअर वंस अ लॉट। अब उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, दे नो दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्लोअर वंस, बट स्लोअर वंस जो हैं दे वर एबल टू स्कोर रन्स ऑन देम बिकॉज दे न्यू द प्लान। कहीं ना कहीं आई थिंक जिस तरह हम शाहीन को देखते द लास्ट ओवर ही डिड, ही बोल्ड स्लो वन, ही बोल्ड स्लोअर वन बैक ऑफ द लेंथ, एक बाउंसर शॉर्ट बॉल बाउंसर किया उसने और देन ही बोल्ड 3 यॉर्कर्स, सो ही केप्ट द बैट्समैन गेसिंग। I think that was missing from Haris today. Haris and Hassan can bowl very good yorkers, and that there is no doubt about it. I can know that once you try, you have a plan, but it doesn't execute well. ये होता है, that's a part of the game. But especially Haris, I think he was relying more on his slower ones, knowing that the slower ones are not coming out of his hand or probably are not working as much as they were in the last game. So he should have come on to the Yorkers because he is a very good Yorker bowler as well. Yeah, absolutely. Let's talk about the Afghanistan batting, Misbah. ठीक है, उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, 4 विकेटें उनकी गिर गई, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक भी बड़ा अच्छा किया। उन्होंने एक अच्छी फाइट की और जहां हम एक टाइम पे देख रहे थे कि 110-120 रन का मे बी टारगेट देंगे, दे वेंट ऑन टू स्कोरिंग 140 प्लस, पुटिंग अप अ गुड 147 रन टोटल फॉर अस। बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर आप देखें इस अफगानिस्तान की जो टीम है, इसकी बैटिंग में डेप्थ देखें, गुलबदीन नायब 8वें नंबर पे हैं और वो ओपन भी कर चुके हैं अफगानिस्तान की तरफ से, हेवन बोल्ड सिंगल ओवर, लेकिन जितना अच्छा वो खेला है मोहम्मद नबी के साथ एंड पे जो पार्टनरशिप एक्सपीरियंस। सो जब आपकी सेम लाइक पाकिस्तान, जब आपके पास 8वें-9वें नंबर तक ऐसे बैट्समैन हों, ऊपर से आपके पास तेज़ खेलने वाले हों, मिडिल में आपके पास अच्छे प्लेयर हों जो कि अटैक भी कर सकें, तो आई थिंक कि दैट कॉन्फिडेंस आपको जो मिलता है वो यही है कि आप पूरा खेलते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आके शॉटें खेली हैं, ही वाज जस्ट प्लेइंग लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन। मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन भी कर चुके हैं, तो ना सिर्फ ये कि बड़ी शॉटें मारी हैं, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल को पुश करना था, गैप्स में सिंगल्स करने थे, वो भी किए हैं। और पाकिस्तान पे उन्होंने मेक श्योर किया कि एक पार्टनरशिप बनाएं, एंड तक ले जाएं, पाकिस्तान पे प्रेशर रखें, और फिर उसको एंड के 2 ओवरों में बड़ा अच्छा कैश किया। बिल्कुल किया और 147 रन का टोटल किया। देन केम पाकिस्तान टू बैट। मोहम्मद रिजवान से हमें बड़ी उम्मीदें थी, बाबर आजम से, बट मोहम्मद रिजवान अनफॉर्चुनेटली 8 रन बनाकर आउट हुए। क्रेडिट गोज़ टू मुजीबुर रहमान, क्योंकि उन्होंने एक स्वीप वहां पे चौका खाया और फिर फील्डर रखा वहां पे, दैट वाज अनलकी। पहले जो पहला वाला मारा चौका वो अंदर गया तो थोड़ी एज लगी थी, ये पूरा मिडल हुआ था, ही वाज मिडल्ड इट, that's his strength, but unfortunately went straight to the fielder and he took a blinder of a catch, I must say. So Rizwan का इसमें कोई कसूर नहीं है। And of course coming back to the skipper, he looked good, he analyzed the situation very well. I think I never thought कि बाबर इस तरह की शॉट मारेगा उस स्टेज पे। उसका आखिरी बॉल था राशिद का, स्पेल का आखिरी बॉल था, उसके बाद 3 ओवर थे, बट अगेन उसके 50 ने फर्क तो बहुत डाला, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन एक सवाल वहां मैं आपसे करना चाहता हूँ, बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली एंड ऑफ कोर्स डिलीवर्ड, द कैप्टन इज किंग राइट नाउ, एंड अगेन हाफ सेंचुरी दैट बेसिकली गेव द एंटायर फाउंडेशन टू द पाकिस्तानी इनिंग्स। लेकिन जब राशिद के ओवर में 12 रन हो गए थे और वो आखिरी बॉल रह गया था, तो व्हाट, बिकॉज आप खेले हुए, इनकी कप्तानी में भी खेले, इनके साथ भी खेले हुए, व्हाट वेंट थ्रू बाबर्स माइंड टू डू दैट शॉट वाज नॉट कॉल्ड फॉर? ही कुड हैव सेव्ड हिज विकेट एंड टेकन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द कमिंग बैट्समैन। देखिए बाबर को क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि जिस तरीके से उन्होंने बारी किया। आई नो दैट शॉट वाज नॉट ऑन, बट आई थिंक दैट वाज द राइट वे टू गो, बिकॉज नोइंग दैट कि आपको आखिरी 3 ओवर में यू नीड मोर देन 26 रन इन एन ओवर। और फिर हमने देखा कि 1 ओवर कैन टर्न द गेम, वो जो नवीन ने आके किया। I know he picked that googly, he knew that it was there, but I think he just missed the line of the ball. But if he would have scored on this, होता क्या है कि जो आपका मेन बॉलर होता है, जब when you score runs to him,
तो सारी टीम जो है ना दैट वेंट ऑन द बैक फुट, दे गेट डिमोरलाइज और वो बैक फुट पे चले जाते हैं। 12 रन तो कर लिए थे स्कोर इस पे, बट अनएक्सपेक्टेडली राशिद ने 12 रन। देखिए nobody that blistering six by Shoaib Malik on the very first ball. That's what I'm saying, that nobody was expecting that we will target Rashid as his last over, so we want to finish the match. We are not taking the match till the 18th over, 19th over or 20th over. We want to finish it way ahead because we have lost only 3 wickets. Right. So that might be the reason. क्योंकि देखिए एक सेइंग है, वो यही कहते हैं किसी भी उस फॉर्मेट में, ये शोएब मलिक का जो छिक्का मारा उसने राशिद को बड़े मौके में, थोड़ा बॉल बार किया उसने, स्पिन के अगेंस्ट खेला, बट ही वाज रेडी कि मुझे थोड़ा सा रूम मिला तो मैं जाऊंगा towards mid on mid wicket and he middled it to perfection. Huge shot. देखिए असल में होता ये है कि जब आपके when you required 38 or 39 of last 4 overs, the pressure is also on the bowling side. Not only the batting side, but the pressure is also on the bowling side. So अगर आपको एक अच्छा ओवर लग जाता है तो bowling side के ऊपर ज़्यादा pressure आ जाता है. Then you have to execute your plans accordingly. Absolutely. That is another reason probably. Wasim, Yes. Dino's spirit must be very happy to see how Asif Ali finished that. Yeah. He was a big supporter of Asif Ali. Dean Jones was a huge fan and well-wisher of Pakistan cricket. Apart from PSL में उसने कोचिंग की इस्लामाबाद से, फिर कराची आया हाफ सीजन. I think he just got to realize that इस मुल्क के लोग, इस मुल्क की cricket, इस मुल्क का खाना, he was fascinated by the country because he realized after a year or two I got to know the culture of these people, of this country where I'm working, and he loved every minute of it, the hospitality जो हमारे culture की है, and of course the talent उसने देखा इस मुल्क में, especially आसिफ अली को, बड़ा close था आसिफ अली से वो. बिल्कुल, डीनो भी बड़े सपोर्टर थे और मिसबा आपको भी बड़ा सपोर्टर कहा जाता है, बट इस पे बात करेंगे. आप देख रहे हैं द पेविलियन ऑन ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान एंड वेल प्लेड अफगानिस्तान. और एक और मैच भी हुआ था, वेरी क्लोज वन बिटवीन बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज. विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. कीप वॉचिंग द पेविलियन और अपने सवालात आस्क द पेविलियन हैशटैग पर रवाना करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में उन पे भी बातचीत होगी. देखते रहिए द पेविलियन. Alright, welcome back from the break. आप देख रहे हैं द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. यह है ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. आज मुत्तहदा अरब अमीरात में 2 मुकाबले हुए. पहला शारजा में, जहां पे वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को एक बहुत ही सनसनीखेज खेल में हराया, और उसके बाद दूसरा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पे पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान को शिकस्त दी. बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया दोनों टीमों की तरफ से, और उसमें हम बात कर रहे हैं. इस वक्त हुआ है कि आपको लेकर चलें मैन ऑफ द मैच की तरफ, ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान केबल्स. Right, there you have it. Now, बाबर आजम ने एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने 1000 रन मुकम्मल किए बहैसियत कप्तान 26 मैचों के अंदर, 26 इनिंग्स के अंदर. सो दिस इज रियली इन T20 क्रिकेट, दैट्स रियली अमेजिंग. ये आपको पता है किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? उन्होंने विराट कोहली का. उन्होंने 30 इनिंग्स में 1000 रन बनाए थे T20 के अंदर. सो ही इज डन अ रियली गुड जॉब. बाबर आजम, दे आर डूइंग रियली वेल, एंड अ वेरी गुड इनिंग्स देयर बाय बाबर. मिसबा, बिल्कुल मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट था, स्पेशली उनके जो मेन बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, मुजीब, उस पर वो बहुत डिपेंड करते हैं. आप फ्रंट विकेट्स लेता है वो, और स्पिनर्स को मेनली वो ओवर्स खेला है बाबर, और उसको लेके गया एंड तक, एक पूरा प्लेटफॉर्म सेट किया है आखिर के बैट्समैनों के लिए, स्पेशली अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक. अगर आप अर्ली ऑन विकेट लूज़ करें तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पिनर और ज़्यादा फिर प्रेशर डालते हैं, डॉट बॉल्स होती हैं, सेट बैट्समैन चाहिए होता है अंदर आपको. द वे ही वाज रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल्स ले रहा था और कोशिश कर रहा था कि इसको हम अकॉर्डिंग टू देयर प्लान एंड तक ले के जाएँ. पता था कि इन एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, फास्ट बॉलिंग, हमारे एक्सपीरियंस जो अफगानिस्तान की टीम के एक्सपीरियंस बॉलर हैं वो स्पिनर हैं उनके, तो मेक श्योर कि उनको विकेट ना दें. एंड पे गलती ज़रूर कर गए कि एक बॉल वो सी ऑफ कर देते तो फास्ट बॉलर्स को शायद और इजी होता पाकिस्तान के. बट ओवरऑल आई थिंक एक अच्छी इनिंग, अच्छा एंकर किया पूरी इनिंग को. विदाउट दैट would have been really in trouble. Yes, without that innings by Babar Azam, Pakistan would have been in trouble. And with that, it's time for Best Fielding, brought to you by Sensodyne. जहां बाबर आजम की इनिंग्स एक अजीम इनिंग्स थी आज के मैच के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को लिए एक ऐसी बुनियाद रखी और उस बुनियाद के ऊपर एक दीवार बनाते गए, 17वें ओवर तक लेकर गए इस मामले को. सो दैट वाज रियली वेल डन. दूसरी तरफ आज के हीरो, 1 ओवर में 4 छक्के मारे आसिफ अली ने. क्या शानदार और बेहतरीन इनिंग्स खेली.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए गौर से। ओवर द इयर्स कौन कौन से ऐसे कोचेज हैं, जैसे आपको मिसबा ने बड़ा सपोर्ट किया, मिसबा के ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता था कि आसिफ आसिफ करता है वो, तो ओवर द इयर्स कौन कौन ऐसे कोचेज हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट की तो आज यहाँ पहुंचे हैं? सारे कोचेस का शुक्रिया, स्पेशली मिसबा भाई ने बड़ा बैक किया, क्योंकि मेरा कैरियर का स्टार्ट ही उनके साथ हुआ है। क्योंकि फैसलाबाद से खेलते थे, मैं फैसलाबाद से उनके साथ मेरा डेब्यू हुआ, फिर सुई SNGPL में गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान के कोच बने, उनके साथ खेला के सारी जो थी उन्होंने काफ़ी मेहनत की मेरे पे, मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। बाकी सब कोचेज़ ने भी बड़ा मेरे साथ वर्क किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका मैं शुक्रगुजार। बेहतरीन मिसबाहुल हक, आप तो बहुत खुश होंगे, बहुत फख्र महसूस हो रहा होगा आपको कि एक तो ये है कि पूरा क्रेडिट मैं देता हूँ आसिफ अली को कि उन्होंने ये बात पूरी की पूरी बोली। बड़ी बात होती है जब आप मोमेंट में शाइन कर रहे होते हैं, एक्नॉलेज करना। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे वो लोग जो आपको वाकई में तनकीद का निशाना बनाते रहे इस मामले पे, आज आपके लिए मेरा ख्याल है बहुत ही क्या कहेंगे, देखिए बड़ी खुशी है, स्पेशली आई कैन फील फॉर आसिफ या जिन भी प्लेयरों को मेरी वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। आई थिंक ही वेंट थ्रू अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। कई दफ़ा बहुत ज़्यादती होती है पाकिस्तान में, आप खामखा जो है वो प्रेशर डालते हैं प्लेयर्स पे, हालांकि आपको पता होता है कि ऐसा प्लेयर है कि वो उस एक सर्टन नंबर पे आपके लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कर सकता है, बट किसी और के गुस्से में आप जो है उनको भी रगड़ते हैं, नुकसान पाकिस्तान को होता है। आई थिंक बहुत खुश होते हैं, चाहे वो नाम लें या ना लें, जब भी आप किसी ऐसे प्लेयर को उसके टैलेंट पे, उसकी एबिलिटी पे बैक कर रहे होते हैं और वो परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। खुशी होती है आपको, ऐसा प्लेयर परफॉर्म करता है, पाकिस्तान जीतता है, बट हेड्स ऑफ, थैंक यू आसिफ के उस खुशी को डबल कर देता है जब बंदा वो आपको याद रखता है। तो इट्स गुड कि ही इज़ परफॉर्मिंग, ही इज़ कॉन्फिडेंट, गुड फॉर पाकिस्तान। बोथ आसिफ एंड इवन इफ्तिखार, जब वो मिसबा था कोच, वो टीम में होता था, ये हम पाकिस्तानी इस जनरेशन ने एक नया लफ्ज़ सीख लिया। लकीर के फ़कीर तो हैं, बिल्कुल है। इन्होंने एक लफ्ज़ सीख लिया, पर्ची। जो इन्होंने आसिफ को इतना पर्ची का है और इफ्तिखार को, अब कौन, हु इज़ लाफिंग नाउ? आसिफ अली इज़। सो यू क्रिटिसाइज योर प्लेयर्स टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिलो द बेल्ट नहीं जाना। देखिए वसीम भाई, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ की बात होती है वो ये होती है फॉर यू कि आपने तकरीबन 15 से 17 साल पाकिस्तान को सर्व किया, आपने खेला है, लोगों के साथ रहे हैं, उनके सामने आपने, और सडनली जब ऐसी बात कोई कहता है तो इट स्ट्रेट अवे दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर क्रेडिबिलिटी। यार इसका मतलब है कि हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हम बेईमान लोग हैं। पर्चियाँ चलती हैं इस मुल्क में, चलती हैं, अभी तक फ़ोन आते हैं सिफारिशों के। वी हैवंट गॉट आउट ऑफ दैट माइंडसेट येट। अब ये पाकिस्तान टीम है, इट्स नॉट अ क्लब क्रिकेट कि मेरे पुप्पी का बेटा है तो इसको खिला दो, या ये है तो मेरा बेटा है, छोटा बेटा अच्छा खेलता है। आई थिंक ये जो एंड में आज उन्होंने बंदूक चलाई है छक्का मारने के बाद, ये गौर से देखें आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये तकरीबन उन तमाम क्रिटिक्स के लिए, उन तनकीद करने वालों के लिए शॉट फायर किया है आसिफ अली ने वहाँ पर 4 छक्के मारने के बाद। तनकीद जरूर करो। हाँ विकी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं आप बात कर रहे हो। नहीं फाइन। नो आई एम जस्ट आई एम सो हैप्पी फॉर आसिफ, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो वैसे ही इट्स सच अ प्रेशर गेम होती है, आप यूर ऑलवेज इन द प्रेशर कुकर, और मैं मिसबा की भी पेन को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव बीन द हेड कोच बिफोर दैट कपल ऑफ टाइम्स, तो इट हर्ट्स, इट डेफिनेटली हर्ट्स। जहाँ तक आसिफ की बात है, आसिफ he lost his daughter बस a year and a bit ago, and he went through that real big shock because that was the only daughter he had at the time. तो वो भी आप उसको भी साथ साथ अगर इसको मिलाएंगे तो आपको समझ आएगी कि what he was going through. He is a very talented cricketer. You have seen it. आपको नजर आ रहा है. आप slowly he is showing his true colors कि है क्या चीज़ वो. So I think we should all praise him, and also I must say कि Haris was another one. They both were in that same sort of ship कि जहाँ पे हमने सब ने इनको इतना लताड़ा कि यार ये क्या कर दिया आप लोगों ने, और ये हमारा ही कसूर है. हम और आई रिमेंबर आसिफ ने मिसबा की तारीफ ठीक की है. मुझे याद है सेकंड PSL थी कि पहली PSL थी, दूसरी कराची के अगेंस्ट मैच था मेरा, दूसरी PSL थी. मिसबा पिक्ड अप आसिफ अली
हमें नहीं था पता कौन है, मुझे नहीं था पता, किसी को, डीन जोन्स या हमारे जो क्रिकेटर्स थे, नोबडी न्यू हु ही वाज. मिसबा टेज, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर and he can be finisher for Islamabad United. And I'm talking about this 6 years ago. जी. And now look where he is. So that shows कि अगर किसी में टैलेंट नजर आया, मिसबा को, वकार को या वहाब को. आपने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है the best finisher of the game. Yes, he is best finisher in the game. मैंने तो किया है जो बेन स्टोक्स ने किया है. बेन स्टोक्स ने जो किया है, बिल्कुल उन्होंने remember this name. Remember the name आसिफ अली. ये नाम याद रखना, आसिफ अली. और आई होप कि बहुत सारे दोस्तों के लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगी कि एक हद तक तो आप जा सकते हैं तनकीद करने में, लेकिन किसी की तज़लील करना, किसी के बारे में गलत और घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करना, ये लोगों को हर्ट करती है. और आज हम लेकिन सब खुश हैं. और आसिफ अली की जो नन्ही परी जो इस दुनिया में नहीं रही, वो कहीं से ऊपर से देख के आज अपने बाबा को बहुत खुश हो रही होगी. एंड यकीनन आसिफ अली के दिल में भी आज बहुत खुशी होगी इस विक्ट्री. कैन वी प्रे फॉर हिम बिकॉज पाकिस्तान के लिए खेलता है. अल्लाह ताला उसको और कामयाबियाँ दे और उसके लिए जो है आसानियाँ पैदा करे. आमीन सुम आमीन. एंड विद दैट आई थिंक few things that I want to, I'll just ask this to all of you, especially Misbah, because आप लास्ट कोच थे पाकिस्तान टीम के. ये जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है अब तक 3 मैचेस के अंदर, पाकिस्तान चेस करता है और आपने नोट किया होगा कि ये आखिरी ओवरों के लिए जो है ना, ये रख देते हैं, आखिरी 10-12 ओवरों के लिए 100 रन छोड़ देते हैं, विकेट्स ऊपर से बचा के रख रहे हैं. एंड इट काइंड ऑफ इज वर्किंग दिस स्ट्रेटजी सो फार on these pitches, that's what I mean for this World Cup. You think this is a strategy good to stick with, या इसको थोड़ा सा अब आगे जो आसान, अब पता नहीं है T20 है, डिपेंड करता है, इतना तो पता होता है, डिपेंड करता है. टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे. आप देख रहे हैं द पेविलियन, देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. वी सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक. बहुत कुछ है अभी बाकी. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज होती है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप मुत्तहिदा अरब अमीरात से आप लोगों के लिए बराह रास्त. पहला मैच हुआ था बांग्लादेश में मुकाबला वेस्ट इंडीज. सनसनीखेज मुकाबला, वेस्ट इंडीज ने जीता. दूसरा मुकाबला ऑफ कोर्स फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, द रिंग ऑफ फायर, वेयर पाकिस्तान डिफीटेड अफगानिस्तान. और इस तरह पाकिस्तान अपने पूल के टेबल में टॉप पे इस वक्त मौजूद है. इट प्रीटी मच गारंटीज कि पाकिस्तान जो है अब सेमीफाइनल के लिए जाएगा यहां से आगे. कुछ लम्हे पहले बेन स्टोक्स ने एक ट्वीट तो किया था, रिमेंबर द नेम आसिफ अली, और दूसरा ट्वीट उन्होंने किया था पाकिस्तान इंग्लैंड फाइनल क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान. विल फाइंड आउट इन द पेविलियन विद मी. 4 very happy Pakistani legends, superstars, Wasim Akram, Waqar Younis, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. Of course, टीम पाकिस्तान की जीत की खुशी है. हम बात कर रहे थे अपनी टीम के बारे में, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें नहीं. बाबर आजम की इनिंग्स की भी बात की, शोएब मलिक का बड़ा ज़बरदस्त छक्का राशिद खान के खिलाफ एट अ वेरी क्रूशल टाइम. एंड देन ऑफ कोर्स आसिफ अली ने बेहतरीन तरीके से जो है उसको फिनिश किया. बट लेट्स नॉट फॉरगेट, आज राशिद खान ने अपनी 100 विकेट्स पूरी की हैं. यू नो, सो लेट्स आल्सो गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू अफगानिस्तान, बिकॉज आई थिंक अफगानिस्तान के एक तो लोग वैसे बड़े रेजिलिएंट हैं, उनकी तारीख गवाह है इस बात की. और जितने मुश्किल टर्मोइल से वो निकल कर टू सेंड अ टीम एट दिस टाइम टू द आईसीसी वर्ल्ड T20, आई थिंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन इट्स ओन. Yeah, it really is. We can't imagine what they go through, players. जब आपके मुल्क में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो, आपकी फैमिली का क्या हाल है, उसके बावजूद जो आए हैं और जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं. ये इनका भी दूसरा ही मैच था, क्लोज गेम अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, पाकिस्तान. और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि डेंजरस साइड है अफगानिस्तान, बिकॉज द वे दे प्ले द क्रिकेट, फेलेस हैं जो उनकी बॉलिंग में वेरिएशन है, स्पेशली स्पिनर्स में. बट आई थिंक जहाँ मैंने ये भी कहा था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, ये प्रेशर इन पे जहाँ आएगा, जहाँ इनके फास्ट तीन जो बॉलर्स हैं, फास्ट मीडियम पेसेस, वो ठीक है अच्छी स्लो बॉलिंग करते हैं, बट बाकी टीमें भी यही करेंगी इनके खिलाफ कि इन 2 स्पिनर्स को देख लो और उसके बाद बाकी 3 पे अटैक करो. जी हाँ, बड़े आई थिंक दैट वुड बी द स्टैंडर्ड स्ट्रेटजी अगेंस्ट अफगानिस्तान उनके बाकी मैचेस के लिए. दे आर स्टिल इन देयर, आई मीन यू नो, दे स्टिल देव गॉट 1 गेम अंडर देयर बेल्ट, 1 लॉस. तो ये बड़ा अब हमारे पूल के अंदर वहाँ, बिकॉज आप पूल पे बड़ी ज़बरदस्त नज़र डालते हैं, मुझे पता है आपको बड़ा उबूर रहता है पूल पे. ये पूल का दोबारा पॉइंट टेबल आपके सामने लाता हूँ, इसको ज़रा एसेस कीजिए और हमें बताइए यहाँ से पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता हम कहाँ पे खड़े हैं, और बाकी टीमें जो हैं. पूल का ये टेबल आ रहा है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, कि इस वक्त बाकी टीमों के लिए क्या सूरत हाल बनेगी आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. ये रहा पूल टेबल. वहां ओवर टू यू. देखिए, पाकिस्तान 3 मैचेस जीता है, रन रेट भी बहुत अच्छा है, वी आर टॉप ऑफ द टेबल एंड वी हैव ऑलमोस्ट वी आर क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स. उसकी वजह मैं ये कहूँगा कि यू नो अभी स्टिल
इंडिया न्यूजीलैंड का एक मैच है, so one team has to go out, and then Afghanistan has to play both New Zealand and India. So now the battle is between New Zealand, India, and Afghanistan. I know India is the strongest according to the South Asian conditions, but I still believe that Afghanistan, the way they have played, it is like you cannot write them off at any case. You cannot, because they still have games to go. अच्छा दोस्तों, अब चलते हैं वापस पहले मैच की तरफ जो हमने शारजा से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया था। दिस वाज वेस्ट इंडीज व मुकाबला बांग्लादेश। सबसे पहले तो मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं ताकि हमें अंदाजा। ये था मैच जनाब, वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। पूरन ने एक बेहतरीन शानदार इनिंग्स खेली, इस पे बात करेंगे क्योंकि हमारे जो पैनल है, एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, उन्होंने बार बार ये बात पर एम्फसाइज किया कि पूरन को शुरू में भेजना चाहिए वेस्ट इंडीज को। आज वेस्ट इंडीज के लिए ये खुशकिस्मती थी कि वो ये मैच बड़ा क्लोज कॉल था, 3 रन से जीते एंड में, बट पूरन देर 40 रन, चेस देर 39, होल्डर 15, पोलार्ड 14 and Shuriful 2 for 20 bowled really well. Mahdi there 2 for 27 bowled well, and Mustafizur there for 2 for 43 थोड़े expensive थे आज। Litton ने आज finally Bangladesh team went with him and he stayed in there 44 अच्छी innings खेली उन्होंने। अहमदुल्ला 31 रन और फिर उसके बाद सोमिया सरकार और नईम ने 17 रन बनाए। होल्डर 1 विकेट, सब ने रामपॉल, हुसैन, रसल सब ने 1 विकेट हासिल की। एंड में मैच बड़ा फंसा हुआ था, इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। 3 रन से वेस्ट इंडीज ने मैच जीता। लग रहा था कि दोनों टीमें चाह रही हैं कि हम ये मैच ना जीतें। जिस तरीके से ये आए हैं, चल रहा था। Yeah, actually it was. That's what I felt when I was watching the game. I mean, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग शुरू की है वेस्ट इंडीज़ ने, क्रिस गेल 10 गेंदों पे 4, लुइस डेंजरस प्लेयर चला नहीं आज, फेयर एनफ 9 गेंदों पे 6, रॉस्टन चेज 46 गेंदों पे 39 विकेटें गिर रही थी। वो तो अगर नीचे से ये निकोलस पुरान ना आया होता, उसने 40 ना किए होते 22 गेंदों पे, तो इन्होंने 100 भी नहीं था करना जिस तरीके से जा रहे थे। और रसल, आई मीन in every league, in IPL to PSL to Canadian League to Big Bash, he goes for big money. Yeah. And it means that he's a top player. Right. But his attitude इनकी मुझे समझ नहीं आती. Sometimes they come back look lean, sometimes they come back look like कि अभी हवा भरो आके आए हैं. You know, they're just not consistent with their fitnesses. Right. That's where the problem is. Yeah. I mean, ठीक है, different islands से हैं, अब से नहीं है, हजार सालों से हैं. You know, decades, whenever they are. So whenever you with the team unite, and it's a dangerous side. मुझे गुस्सा इन पे इसलिए कि मैंने इनको one of the favorites कहा था. That's what I thought. Your favorites didn't disappoint you. Today the defending champions West Indies, उन्होंने ये मैच जीता है and they're still keeping their hopes alive in this tournament. इसके साथ and बांग्लादेश को भी काफी सोचना पड़ेगा जाके कि किस तरह की टीम खिलानी है. अब स्पिनर्स पे चाहे वो सीमेंट दे दो स्पिनर्स खिला देंगे 6, चाहे आप घास वाली विकेट दे दो स्पिनर्स खिला देंगे 6. बांग्लादेश में चलता है, उसके बाद नहीं चलेगा ये. Yeah, I think they'll have to change their strategy as well. और दोस्तों इसके साथ ही पेविलियन पे लेने लगे हैं एक वक्फा, मगर वक्फे के बाद आपके सवालात और हमारे लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स देंगे उनका जवाब. #AskThePavilion ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने सवालात रवाना कर दीजिए. मिलते हैं इस वक्फे के बाद. देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. वेलकम बैक टू द पेविलियन. मैं हूं फखर आलम और आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. हमारी खुसूसी नशरियात ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की मुत्तहदा अरब अमीरात से बराह रास्त आपकी खिदमत में. मेरे साथ पेविलियन में मौजूद बहुत ही खुश पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज. पाकिस्तान की एक और जीत और इस तरह हमारा सिलसिला सफ़र आगे रवां दवा है. अब आगे सेमीफाइनल है, 2 और हमारे इम्तिहान कह रहे हैं, 2 और मैचेस हैं और उसके बाद फिर देखते हैं सूरत हाल कैसे बनती है हमारे पूल के अंदर. दूसरी तरफ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के मैच की हम बात कर रहे थे. जल्दी से उसको आखिर में एक दफ़ा फिर देख लेते हैं. शाकिब अल हसन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं वहाब. आज उनको ओपन भी कराया. जी, मैं वही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है बांग्लादेश की. ट्राइड एंड टेस्टेड बट नॉट रियली फायरिंग. देखिए, वो उनका मेन प्लेयर है और एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसने काफ़ी ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं उनके. आई थिंक कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी टीम में जिस तरह आप बाबर की मिसाल ले लें कि एवरीबडी लुक्ड अप टू दोज पीपल के ये कुछ करेंगे. तो आई थिंक कहीं ना कहीं आज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बेहतर था
शाकिब स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी और को आना है आगे, किसी और को आके कहना है कि यार ठीक है, अगर ये नहीं कर पा रहा है, इसकी बैड फॉर्म है, तो मैं आई विल टेक दैट चांस। राइट। महमूदुल्लाह हैज़ प्लेड रियली वेल, लेकिन जो उनका एक और मेन प्लेयर जो मुशफिकुर है, he is struggling as well. So nobody from their team is consistent except Mahmudullah and Saqib. That is a big, I would say, damage to them, because you know पहले तमीम होता था, he kept one and going और वो बारी लंबी करता था, and he plays according to the situation where everybody comes in and they play around him. Right. But after Tamim has gone, unfit होने के बाद, I think they couldn't get it back really right on their path. उनके लिए बिल्कुल सही है। अच्छा जनाब, आज द पेविलियन के सवालात शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जी आपका। मेरा पहला क्वेश्चन है। नहीं पूछा ना किसी ने। मेरा एक प्लीज। हाँ प्लीज गो नट्स। इंडिया किधर है? Where is India? वो उनका टूर्नामेंट शुरू होगा। टूर्नामेंट खत्म होने को है, उन्होंने दूसरा मैच भी नहीं खेला। हफ्ता हो गया मैच नहीं खेला यार। But sometimes long tournament में इतनी लंबी break is not good for a team, because बाकी टीमें मैच प्रैक्टिस करी जा रही है। Bad, this is so unfair. It is. To other teams. Pakistan already played 3 games. There are teams who have played 3 games. और इंडिया वो पता नहीं है कि तेरे मुझे तो डर है कि वापस ना चलेंगे उन आफ्टर दैट पाकिस्तान। Yeah, that's bizarre though. Okay, so this is really बड़ा अच्छा पॉइंट वकार आपने रेज किया, और ये काफी सोशल मीडिया पे भी इस पे बड़ी बात हो रही है कि इंटरेस्टिंगली अब क्या है कि इंडिया जो है वो बैठी हुई देख रही है, इसने उससे खेल लिया, उसने इससे खेल लिया, इसको ये एडवांटेज है, उसको ये एडवांटेज है, इसका ये प्लेयर फॉर्म में, उसका वो प्लेयर फॉर्म में नहीं है। अच्छा अब टेबल पे सूरत हाल ये है, नेट रन रेट्स ये है, अगर हम इस इक्वेशन से जाएं तो हमें ज्यादा रन करने में, दे गेट दैट एडवांटेज। व्हाई? ये आपको याद हो आज से पेविलियन पे भी एक साहब ने सवाल पूछा था कि ये उनको ना उन्होंने ट्रैवलिंग करनी है, सारे मैचेस उनको दुबई में दे दिए। I suppose we can't answer this. The ICC. ICC has to answer this. This is very It is very weird. मेरा पहला क्वेश्चन है वहाब आपके लिए आया है। उमर फरीद राव asked the pavilion, congratulations Pakistan, want to see Vicky Wahab's drawing today which he draws daily. दिखा क्या बनाया कैमरे में फखर भाई? वो इन्होंने मुझे पास ऑन कर दी थी। क्लोजअप दीजिएगा जरा प्लीज, थोड़ा और क्लोजअप करें क्योंकि अपर्चर हाई ब्राइट है। ये वन थिंग फॉर श्योर, पिछले 10 दिनों में इज गेटिंग बेटर। Okay, we go on. He's working on it. He's working. Absolutely, जनाब। सवाल है कामरान चौधरी की तरफ से, और वो कहते हैं कि क्या पाकिस्तान को, अंग्रेजी में किया, मैं उर्दू में आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने पहले 3 दफा चेज कर लिया, अब क्या बेहतर नहीं होगा कि अगले 2 मैचेस में अगर टॉस जीतते हैं तो पहले बैटिंग कर लें और एक दफा पहले बैटिंग करने का भी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आगे बड़े मैचेस में टॉस ना जीते हैं और उनको पहले बैटिंग करनी पड़ जाए। लेट मी आंसर दैट क्विकली। 99 में एक दफा किया था, अभी तक तुम लोगों ने भूलने नहीं दिया मुझे अब पाकिस्तान टीम को। दोबारा बताएं। तो तुम दोबारा चाहते हो कि ये खुदा ना खास्ता ये इसके लिए जाएं और हार जाएं, एंड पूरे 20 साल उन्होंने तो सत्यानाश ही मार दो तुसी लोग। सो नाउ यू कैन आंसर। चलें, अगला सवाल जो है हैदर अजहर है। हैदर अजहर एक एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट पे बड़ा तबसरा करते हैं, उनका प्रोग्राम भी आता है, उनका वेरीफाइड ट्विटर का हैंडल भी है। उनका सवाल था, उनकी एक कमेंट थी, उससे एक सवाल निकला था और मिस भाई आपकी तरफ डायरेक्टेड था, और मैं ये पूछूंगा। उसकी वजह यह है कि आई थिंक हम एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सा प्लेटफॉर्म हमारा वसीम बन गया है स्पोर्ट्स का और द पेविलियन पे, एंड वी आस्क द टफ क्वेश्चंस इवन इफ पीपल, लोग समझते हैं कि नहीं पूछेंगे, बट मैं पूछ रहा हूँ। सो मिस भाई आपने पढ़ तो लिया, बट मैं ऑडियंस के लिए आपकी तरफ डायरेक्टेड है। हैदर अजहर ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि आई लव द पेविलियन बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द शो, फ्रॉम वसीम भाई टू मी फैनम B3। अगर कोई गिला है तो वो ये, रोमन उर्दू में उन्होंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कि है वो ये है कि व्हेन मिसबा स्पीक्स ऑन हिज टेन्योर, जब आप अपने टेन्योर की बहैसियत कोच बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आप सिलेक्शन को बार बार आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन आप उस पीरियड को इग्नोर कर देते हैं जब आप खुद हेड कोच भी थे और चीफ सिलेक्टर भी थे। इसकी फिर इन्होंने आगे एक और सवाल इसका सब भेजा है कि इनसे ये भी पूछिएगा कि जो चेंजेस आपने की थी T20 की टीम में, दैट हैड ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स इन दैट अनप्रेसिडेंटेड रन, why did he decide to bring back batters who had failed multiple times for the Sri Lanka series and disrupted a settled team? And why was the captain sacked post that series? ये आपके सवालात हैदर अजहर की तरफ से। मिसबा, देखिए सबसे पहली बात तो उन्होंने सिलेक्शन के हवाले से की या क्रिटिसिज्म के हवाले से की। हम अभी जो टीम खेल रही है या अभी जो सिलेक्शन हुई है, हम उस पर बात करने के लिए बैठे हैं और पाकिस्तान टीम पे बात करने के लिए बैठे हैं।
जो चीज़ हमें लगेगी कि वो ठीक नहीं है, हमने उस पर बात करनी। इट डजेंट मीन कि मैं परफेक्ट था या मेरे दौर में जो भी मैंने डिसीजन किए वो सारे बिल्कुल ठीक किए या मैंने कोई गलती नहीं की। एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि भाई ये ज़रूरी नहीं कि मैं परफेक्ट था इसलिए मैं बैठा हूँ, ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं। एंड ऑफ द डे एवरी डिसीजन इज़ नॉट राइट, प्रूव नहीं होता राइट। कुछ आपको पे करते हैं, कुछ आपको पे नहीं करते, सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ऐसे होता है। तो ये आप मत सोचें कि जी इसका ये मतलब मैं जो कुछ कर रहा था वो ठीक था, उसमें कुछ चीज़ें ठीक भी हुई हैं, कुछ ने पे ऑफ नहीं किया। ठीक है। नंबर 2, वेरियस टाइम्स से मेरे से ये सवाल हुआ है कैप्टनसी के हवाले से। भाई मैंने इतनी दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आगे कहा है कि ये टोटली चेयरमैन का जो है वो डिसीजन होता है कौन कप्तान होगा पाकिस्तान टीम का, कोच चीफ सेलेक्टर के हाथ में नहीं होता। सही। मैं अगर उस डिसीजन में होता, मेरा वोट होता या कुछ होता, तो देन मेरे से आप सब पूछते कि हाँ जी ये आपने क्यों किया। तीसरी बात उन्होंने सिलेक्शन की कि बेसिकली उमर अकमल की और अहमद शहजाद की बात कर रहे हैं। वो जब हम आए थे पाकिस्तान टीम उस टाइम साउथ अफ्रीका से T20 भी हार के आई थी। राइट। पाकिस्तान में ओपनिंग का मसला था, फ़खर जमान उस टाइम रन नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान में मिडल ऑर्डर में वहाँ पे शुएब मलिक और हफीज़ भी वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं की थी 2019 के वर्ल्ड कप में, और उस टाइम हमारा T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में था, और इन दोनों ने परफॉर्मेंस की थी प्रीवियस PSL में। और उमर अकमल ने सीज़न में फर्स्ट क्लास में भी हबीब बैंक को जितवाया, वनडे टूर्नामेंट भी जीते, मेन स्कोरर था। उसके बाद लाहौर T20 टूर्नामेंट जीती, उसमें भी उसकी कंट्रीब्यूशन थी। सो ऑस्ट्रेलिया में उसका रिकॉर्ड भी अच्छा था क्योंकि वो फास्ट बॉलर को अच्छा खेलता। तो उसको देखते हुए ये दोनों आए परफॉर्मेंस बेस। ऑब्वियसली उन्होंने नहीं परफॉर्म किया, बाहर हो गए, रन मिलना चाहिए था, ये एक अलग सवाल है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। जो उन्होंने कहा कि ओवर प्लेयर्स, देखें जब मैं आया था तो उस टाइम हमारे पास टाइम था, हमने लॉन्ग रन देखना था 3 साल के लिए। हमने देखना था कि अच्छा ठीक है प्लेयर, नए नए प्लेयरों को चांस दें। बॉलर्स हमारे पास नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में, फिर आपने T20 और वाइट बॉल क्रिकेट में नए बैट्समैन जितने भी, हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे हमें ज़रूरत है हम उनको चेक करें। राइट। देखें गलत भी हुए, ठीक भी हुए डिसीजन। एंड ऑफ द डे अभी देखें ना, अभी देखें कि उनमें से आपके कितने प्लेयर हैं जो अभी आपके मेन प्लेयर हैं, ये जिन पे आप बेस कर। ये जरा नाम ले दे प्लेयर्स के ताकि लोग सुन लें कि वो कौन से प्लेयर हैं जो इस प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुंचे। मैं और किसी का नाम नहीं लेता, मैं तो सबसे पहले नाम लूंगा रिजवान का। जी। आज आप डिपेंडेंट हैं रिजवान पे बाबर के साथ। शाहीन अब बना है, शाहीन कहाँ था पहले? वो इन 2 सालों में शाहीन बन गया ना, वो वाला शाहीन बन गया जो मैच विनर है। हारिस रऊफ को आप देखें कि ठीक है क्रिटिसिज्म भी हुआ, अच्छी परफॉर्मेंस भी हुई, बुरी परफॉर्मेंस भी हुई, अब आप देखें वो कहाँ पे। इवन शादाब खान की उस पर भी कितनी क्रिटिसिज्म हुई कि जी इसको खिलाए जा रहे हैं, इसको खिलाए जा रहे हैं, ये तो अब ख़त्म हो गया है, कोई और किसी को खिलाएं। नोइंगली कि 3 डायमेंशनल प्लेयर है, आपके पास इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको तीनों चीज़ों में वाइट बॉल क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर देता है जो कि और आपके पास नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो देखें कि वो आपको पे ऑफ भी कर रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप नहीं भी होता, वो ये इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। हर डिसीजन अगर ठीक होना शुरू हो जाए आपका, और मैंने पहले कहा कि भाई मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई अफलातून हूँ या मैं जो कुछ करूँगा जो भी वो सब सही होगा। एंड ऑफ द डे आप देखते हैं परसेंटेज। अच्छा जी कोई डिसीजन दिया, आपने क्या किया, आपने कोई ऐसी चीज़ डेवलप करके गए हैं जिसकी बेस पे आगे टीम आपकी चल सकती है कि नहीं। वेरी गुड आंसर हैदर अजहर। आई होप कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और यकीनी तौर पे तमाम उन लोगों को जो ये तबसरे कर देते हैं, तनकीद करते हैं, और सवाल पूछना सबका हक है, तनकीद करना भी सबका हक है, लेकिन हर चीज के पीछे वो है जैसे कहा नोबडी इज परफेक्ट। आई थिंक। और हैदर ऐस तो बात कोई चंगा क्वेश्चन भी पूछ रही आज जीते हैं तो 3 साल पहले से क्वेश्चन पूछी जा रही है। ठीक है, एब्सोल्युटली। कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान। दोस्तों ये फटाफट मैं कर लूं चूंकि खाना कल का लंच जो है उसको बुक करना है मैंने। तो जनाब आज के मैच की वो कहानी थी, वहाब का जनाब आया है
कि अगर तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो 160 लगाएगा और अगर चेस में होगा तो यानी कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो 145 रन होंगे। अफगानिस्तान ने 147 किया, 147। सो गुड कॉल वहाब रियाज। दोस्तों ये है सनसनीखेज मुकाबला इस वक्त जारी है। यहाँ पर कौन खिलाएगा अगला खाना? एक खाना मिसबा पे ऑलरेडी पड़ चुका है। मिसबा ने कहा अगर पहले अफगानिस्तान बैटिंग करेगा तो 130 रन होंगे, पाकिस्तान करेगा तो 165 रन होंगे। पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग की, 147 रन किए, 17 रन से डिफीट है। वसीम अकरम ने लिखा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो 162 रन, अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो 148। सबसे करीब आए हैं आप वसीम, 147। वेल डन, एक दफा फिर जीते हैं ये मुकाबला। और दोस्तों ये तो मैच पड़ गया है बड़ा शदीद वाला। क्या 200 तो नहीं लिख दिया? क्या लिखा है विकी ने? अल्लाह बचा ले। वैसे सीरियस वो कारवी ने लिखा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगा तो 161 और अगर अफगानिस्तान बैटिंग करेगा तो 158। तो गोया आपने जो बताया वो 11 रन का डिफरेंस था और जो मिसबा ने बताया मैं मर गया वो 17 रन का डिफरेंस था। मुबारक हो, मिसबा दूसरा खाना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो जो विनर है उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा बोटियां मिली तो नहीं आज? यही मिलेगा और क्या मिलेगा? भाई आप एक और जो है ना ब्रांड आपको लाना पड़ेगा, एक और जो है ना फ्रेंचाइज इसकी ज्योतिषी जो है नहीं, 2 तोते ले आ रहे, आती शुरू कर देने हैं। फाल करती शुरू कर। ठीक है जनाब, कल दुनिया का फ्यूचर बताना आज है जो कल 2 और मैचेस आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कल का पहला मैच जो है वो क्या है आपकी स्क्रीन पे अब आने लगा है। 2 मैचेस हैं कल के दी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका बामुकाबला श्रीलंका, बहुत अच्छा मैच होगा ये भी क्योंकि साउथ अफ्रीका भी जीतना चाहता है और श्रीलंका ऑफ कोर्स आल्सो नीड्स टू गेट दिस विन। सो दिस शुड बी अ गुड क्लैश। और उसके बाद जो दूसरा मुकाबला है वो आपकी खिदमत में पेश होगा। ये बहुत बड़ा मुकाबला है दोस्तों, इस पे नजर डालिए। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडिया कल भी नहीं खेल रही, इंडिया कल भी नहीं खेल रही है। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। इंडिया 31 तारीख को खेलेगी। इंडिया ये इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ये बहुत जबरदस्त है। 2 बड़ी ही जबरदस्त टीमें। एशेस की भी इसमें झलक है चूंकि ये लोग एशेस भी खेलते हैं आपस में, इनकी एक राइवलरी है ट्रेडिशनल बहुत बड़ी। सो दिस शुड बी अ ग्रेट मैच फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। फायरवर्क्स प्रॉमिस टुमारो एट द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सो विल सी यू टुमारो 1 बजे दोपहर को। And we also getting new clothes, isn't it? Is that right? 3 सूट्स हैं वो, आपने 3 New clothes coming, huh? 3 ये वसीम भाई का क्लोजअप प्लीज। कह रहे हो जी। डन Done. तालिब जा। ये कैसे बनेगी? वसीम बेसिकली ये कह रहे हैं लेकिन साथ साथ में दिल में कह रहे हैं 2040 के वर्ल्ड कप में। ठीक है ना, डन 2040 के वर्ल्ड कप में। But thank you so much again for these wonderful clothes. Thank you so much. Really wonderful clothes. Well done, guys. Thank you, Wahab. Thank you, Waqar. Thank you, Waseem. Thank you, Misbah. And thank you, everyone, for watching. Congratulations to Pakistani fans. Celebrate, 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 and keep praying and hoping that the Pakistani team keeps performing like that. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं द पेविलियन। ये है A Sports और 10 Sports। मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। शब खैर, गुड नाइट, बाय बाय।